So, good evening and welcome to you all. This is the first workshop of Mindshare IIT workshop series in data sciences. Mindshare and IIT Banaras Hindu University have started a project with the name Technology Intervention for Creative Economy, in which we will organize a series of workshops on data analysis, AI, IoT, and many more topics. This is the first workshop which is based on data analytics in Python, where we'll get hands-on experience in Python software. And for the case studies, we will use tourism data for data analysis. And this is the instructor is Dr. Pooja Kapoor of GNIT Noida. And initially, we started the workshop on 17 and 18, but we are later on we merged the two batches, so we have many new students today. So we'll give a brief recap of the introduction and the software installations also. So we are with the new students. Now I request Dr. Pooja Kapoor to please start the session. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Good ma'am. afternoon, ma'am. Okay. Yeah. Good afternoon. Yes, ma'am. Yeah. Good afternoon. Thank you all for being here today. My name is Dr. Pooja Kapoor, and I'm delighted to be your resource person for this workshop on data analytics with Python. Okay, participant, please tell me one thing. In which language you all are comfortable? There is Ma'am, one Hindi. request, ma'am. There is one request. Yes. Actually, the all the participants were adding by default as a viewer. So I have sent request to all of them. Please, I have sent request to all the viewers. There are 13 in number. Please, I have sent a request to make a contributor. So please accept that request so that you can participate in the interaction session also. Ma'am, continue. Okay, so tell me one thing, students. In which language you all are comfortable? Uh, Only English or bilingual? Yeah, Ma'am, please do. Hindi. Hindi. Uh, Yes, ma'am. okay, I think full Hindi is not possible. On some I guess participants. bilingual is fine. Okay, Bilingual. bilingual. Yeah, yeah. Language is fine, Bilingual. ma'am. Okay, fine, fine, fine. Okay, students. Uh, Sir, please give me permission to share this PPT. Uh, Mindshare Yuva coordinator, please give me permission. Yeah, thank you so much. Okay, student. So today's workshop topic is data analysis with Python. Firstly, we need to understand the job prospects and market trends in data analytics area. Okay. So what's the importance of data analytics in today's era? Anyone tell me? See, the field of data analytics offer a Past and present data, find the best data. okay. See, data analytics, is a field with many job opportunities because company need data to make smart decision. And important jobs in this field include, you can say that data analytics, data scientist, and data engineers, business intelligence analyst, and machine learning engineers. Okay, these jobs are in high demand because there is so much data being created every day, and new technology is making it easier to use this data. Okay, so background. So firstly, you need to understand no coding background needed. अगर आप लोग किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सो डोंट वरी, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आराम से. ओके, नो नीड टू कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमटेक, एमसीए.
मोस्ट ऑफ द पीपल्स थिंकिंग कि पता नहीं इसमें कोड होगा तो हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। So one of the hottest careers you can get into, you don't need any coding background. So data analyst is a highly in demand, okay, and even you can check this link, data analyst jobs vacancy. I will post this link in a chat. Check this link. You can see the job opportunities. Naukri.com, data analyst, MIS analyst, data analyst, no experience required, data analyst. See, आप सबको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिस्ट की जॉब्स कितनी इम्पोर्टेंट है एंड कितनी डिमांडिंग ये जॉब है आज के मार्केट में। आप इसे चेक कर सकते हैं, जो मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाला है, बिजनेस डेटा एनालिस्ट। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे सीखना क्या होगा? यस, आपको क्या लगता है, आपको क्या सीखना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? मैम डेटा के बारे में जानना पहले जरूरी होता है डेटा के बारे में क्या जानना है? कि मैम वो जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करके अपने काम लायक उसको कैसे बनाना है। ओके, आप इसकी जॉब इसकी सैलरी पैकेज देख सकते हैं। अब अगर आप बहुत सारे लोग जो आईटी पीपल्स भी हैं जो अपना ये अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, आईटी टू बीए और डीए, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट, ठीक है। ये आज के मार्केट है। तो आपको इसको जानने के लिए क्या समझना होगा, ये देख सकते हैं। डेटा एनालिस्ट के कोर स्किल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, एनी बैचलर डिग्री, ठीक है, किसी भी फील्ड के साथ हो सकती है, बिजनेस, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोर स्किल्स, यस। एनालिटिकल माइंडसेट, एनालिटिकल माइंडसेट मीन आपका ब्रेन लॉजिक बनाना सीखता हो, उसके अंदर रीजनिंग की कैपेसिटी हो, एनालिसिस कर पाए चीजों को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उसके पास हो। तो आपका माइंडसेट एक एनालिटिकल टाइप होना चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि अब माइंडसेट को एनालिटिकल माइंडसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन है तो ओके, वो इम्प्रूव कर लेंगे। लैंग्वेज कोई सीखनी है, प्रोग्रामिंग, वो सीख लेंगे। तो क्वेश्चन इज एनालिटिकल माइंडसेट कैसे डेवलप करें? यस, एनालिटिकल माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? यस, प्लीज डू पार्टिसिपेट स्टूडेंट। एनालिटिकल माइंडसेट, एनीबॉडी एल्स? कोई भी नहीं? यस, सी, अगर आपको अपना माइंड एनालिटिकल बनाना है तो आज से एक प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। जितनी पजल्स गेम्स होती हैं वो खेलना स्टार्ट कर दो, ओके। पजल्स आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पजल्स गेम आती हैं एंड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। जितना पजल्स गेम खेलेंगे उतना आपका जो माइंड है एनालिटिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मीन only English or other regional language mean communication? What do you mean by communication? What is the actual mean of communication? Communication skill. Yes. Communication between two peoples. If one people has not replied, communication gap. No. Okay. मैम इतना होता है कि एक दूसरे को आप कम्युनिकेट उसको बता सको, समझा सको, सामने वाला आपको समझ सके जो आप कहना चाहते हैं।
Is this meaning of communication is only English? Most of the people think कि communication तो शायद English language है, English आनी चाहिए तभी हम communicator हैं अच्छे. No, no, If no, ma'am. no, This is not a yes, right thing. exactly. This is a very wrong, एक mindset है लोगों का कि अगर आप के पास अच्छा English version है तभी आप एक अच्छे communicator हैं. No. Communication skills means strong ability to communicate findings to non-technical stakeholders. Okay? आप अपनी बात को उन लोगों तक भी पहुंचा पा रहे हो जिनको बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, कुछ नहीं आता, राइट? जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो जरूरी तो नहीं कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आपको इंग्लिश आएगी तभी आप एक प्रोडक्ट को बेच पाओगे, नहीं. आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के आगे कैसे रखते हैं, कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, ये बेस्ट कम्युनिकेशन होता है. ओके. एंड थर्ड इज डेटा कलेक्शन एंड डेटा मॉडलिंग. डेटा कलेक्शन मींस डेटा को Data बताइए. यस. collection based on primary and secondary sources. Primary and secondary sources are based on qualities of referred journals, government sites, and यस. something, go to field activities, personal visit, organizations. That means quality of data. If you uh, provide quality of data, some given questions and answers, and then put out the uh, output. Great, great. And you can collect the data even by the help of web scraping. Okay, web scraping करके भी data collection होती है. Yes, primary data, secondary data है. Kaggle एक source है. इसके जैसे ही बहुत सारे sources हैं जहाँ से आप data collect कर सकते हो, right? And fourth is programming language. Programming language. There are two language, Python and R language. अब अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो क्या ऐसा ही है कि आपको पाइथन और आर ही आनी चाहिए? क्या आप एक्सेल के ऊपर नहीं कर सकते एनालिसिस? मैम एसक्यूएल. It's not. एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. Yes, SQL is you can use SQL for data analysis, but I'm asking कि why only Python and R language I have mentioned here? Why not Excel? क्या एक्सेल के ऊपर डेटा एनालिसिस नहीं होता? क्या जब पाइथन और आर नहीं आई थी तो क्या एक्सेल के ऊपर डेटा एनालिसिस नहीं हो रहा था? हो रहा था या नहीं हो रहा था? क्या मानना है आपका? Yes, sir, Yes, वो ma'am. एक्सेल पे डेटा. आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. ये जितने भी अभी प्रोग्रामिंग आ रहा है, SPSS, पैटर्न, जो भी आ रहा है, ये लैंग्वेज बेस के ऊपर किया गया है. थोड़ा सा क्वालिटीज बढ़ाने के लिए किया गया है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया गया है, थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा हो जाए इसके लिए किया गया है. इन सब चीजों के लिए किया गया है. कुछ लोगों को प्रोग्रामिंग में मन लगता है ज्यादा, तो प्रोग्रामिंग बेस्ड ब्रेन यूज करते हैं वो. डेट्स ओके, लेट मी एक्सप्लेन. एक्चुअल में जब पाइथन नहीं थी, एक्सेल तो तब भी काम कर रहा था, डेटा एनालिसिस तब भी हो रहे थे, ठीक है. अमूल का आप ये वेरका प्रोडक्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है ये आज ही आए हैं, ये कई सालों से हैं. क्या ये डेटा एनालिसिस नहीं करते थे? सब होता था. लेकिन क्यों एक्सेल को पीछे करके पाइथन और आर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया? एक्सेल आज के टाइम भी डेटा एनालिसिस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आज के टाइम में मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा है, डेटा कलेक्शन बहुत है, डेटा के सोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि आप अगर आप किसी सोशल मीडिया की बात करो, है ना, चाहे आप यूट्यूब, फेसबुक, कहीं 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 से बात करो, कि आपको डेटा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाता है कि जो एक्सेल है उसे लोड करने के लिए एफिशिएंट सोर्स नहीं है, राइट? एक्सेल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लोड नहीं कर सकता. ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है आर, पाइथन और एक्सेल के अंदर. एक्सेल में आज भी सब वो मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस हैं जो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. यू कैन यूज पावर क्वेरी इन एक्सेल
ठीक है, डेटा एनालिसिस करना है तो पावर क्वेरी एक्सेल में होती है, आप उसे लगाओगे, डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से होता है। पिवट टेबल के साथ, चार्ट के साथ सब विजुअलाइजेशन हो रही है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, जब मेरा डेटा बहुत ज्यादा साइज उसका बढ़ जाता है, उस डेटा को एक्सेल लोड नहीं कर पाता है, पाइथन इजीली उसे लोड कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल के साथ तो नहीं सीखेंगे, हम लोग पाइथन के साथ ही सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आज भी पाइथन को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन है क्या मैम हमें दोनों लैंग्वेज सीखनी है? नहीं, दोनों लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक ही लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। बट पर्सनली आई रिकमेंडेड कि आप पाइथन ही सीखें, क्योंकि पाइथन वर्सेटाइल लैंग्वेज है, स्मार्ट लैंग्वेज है। आपको आगे इसके यूज बताएंगे कि जो पाइथन है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है, डेटा एनालिसिस करना है, डेटा साइंटिस्ट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, डेटा साइंस के पर मशीन लर्निंग, हर जगह पर पाइथन यूज हो रही है। तो क्यों ना हम उस चीज को सीखें जो एक वर्सेटाइल फॉर्म में है। आर लैंग्वेज क्या है? आर लैंग्वेज एक्चुअली स्टैटिस्टिकल पैकेज है। ठीक है, खाली ये बिजनेस स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई लैंग्वेज है। इस पे आप इसके ऊपर अगर आप ये चाहें कि मैं वेब डेवलपमेंट कर पाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आपको अगर फिर भी करना है आर के ऊपर, तो आपको फिर थर्ड पार्टी टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इतने तामझाम में ना जाएं, सो बेटर है कि हम पाइथन सीखें, पाइथन की हेल्प से हम लोग एनालिसिस भी कर सकेंगे। ठीक है, हम कल को आपका माइंड चेंज होता है कि अब मुझे कोड में थोड़ा हाथ मेरा इजी हो गया है, तो आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगेन टूल स्किल्स, हाँ ये लैंग्वेज है। ठीक है, इसको मैं टूल स्किल्स में मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जो पावर बीआई है एंड टेबल्यू, आफ्टर क्लीनिंग द डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड आफ्टर द ईडीए प्रोसेस, आप लोग क्या करते हैं, डेटा को विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन क्या होती है? आपने डेटा एनालिसिस किया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस डेटा को चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में दिखाना है लोगों को कि देखिए ये रिजल्ट आया, ये एनालिसिस है। फॉर एग्जाम्पल अमेज़न ने आज कितनी सेल करी, है ना, कितनी सेल हुई, एंड वो से जो जितनी वो जो प्रोडक्ट था वो किन लोगों ने परचेज करा, उसमें मेल्स कितने थे, उसमें फीमेल्स कितनी थी। अब जो फीमेल्स थी उनका एज ब्रैकेट क्या था, मेल का एज ब्रैकेट क्या था। अब ये एनालिसिस तो हमने कर लिया, है ना, बट इसको विजुअलाइजेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल मीन्स पावर बीआई, टेबल्यू। Okay, you can use these tools to visualize your data in front of customer, in front of your company stakeholders. ठीक है, इस तरह से आप विजुअलाइजेशंस करते हैं। और विजुअलाइजेशन क्यों करनी है? सेम, मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है। अब जब मैं एक चीज कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, एक तरफ अमेजन है, हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट की बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, बट अमेजन की जो डिमांड है थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब अमेजन क्या करेगा इसके ऊपर? वो एनालिसिस करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा कि कौन से प्रोडक्ट में अपने कार्ट में, अपने वहां पर अपने एरिया में वहां पे रखूं कि सो दैट की अप्रोच अच्छी हो। और पता चलता है कि वो वाले प्रोडक्ट रख रहा था जिसको लोग पसंद ही नहीं करते, जब बहुत ओल्ड फैशन कपड़े रख रहा है वो, जिसको लोग पसंद ही नहीं करते, या उसको पैटर्न ट्रेंड्स का नहीं पता, है ना, कुछ भी रख रहा है, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े बेच रहा, सर्दियों में गर्मियों के बेच रहा। तो ये सब जो गैप्स है वो कैसे ये गैप्स रिजॉल्व होते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा के साथ वो एनालिसिस करते हैं कि हमारी कमी क्या है, हमें कैसे अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना है। ओके, तो इस तरह से हम लोग, हमें क्या क्या आना चाहिए इसके लिए? हाँ, एसक्यूएल अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है, एंड उसके बाद पावर बीआई एंड टेबल्यू। ये पूरा फ्रेमवर्क है एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है, तभी आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज है आपका
स्टार्टिंग 9 to 10 स्टार्टिंग पैकेज की बात कह रही है एक अच्छी कंपनी में, मतलब 10 पैकेज तो आराम से मिल जाएगा आपको एज अ फ्रेशर। अब हाल ही में दुबई में एक जॉब निकली थी फ्रेशर्स के लिए, उन्होंने वहां पर 42 का पैकेज मेंशन किया था। सोच के चलिए कि महीने की कितनी सैलरी होगी, राइट। तो सीखना इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, बहुत टफ नहीं है, इसीलिए इस लाइन में हर एक फील्ड का बंदा जा सकता है, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का हो, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस ही आना चाहिए तो ही डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। ये एक मिथ जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए, ओके। इसका पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, राइट। 6 मंथ फुल ये कोर्स रहता है, उसको पूरा डिवाइड करिए कि इस हफ्ते मुझे एक्सेल सीखना है। एक्सेल कुछ हद तक पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कमांड की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल अच्छे से आए, पाइथन अच्छे से आनी चाहिए, और पावर बीआई और टैब्ल्यू में से कोई एक टूल आप चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एनी टू, पावर बीआई और टैब्ल्यू, दोनों नहीं सीखने, ओके। एंड पावर बीआई टैब्ल्यू में से कौन सा लेना चाहिए? मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी पावर बीआई। वाई पावर बीआई? इंडिया मार्केट पावर बीआई की है। जितनी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, एज per my previous experience, in past experience with my old students, पावर बीआई की ज्यादा प्लेसमेंट हुई है, टैब्ल्यू की कम हुई है, ठीक है। सो बट टैब्ल्यू अदरवाइज अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं तो टैब्ल्यू ज्यादा बेस्ट है। बस प्रॉब्लम ये है पावर बीआई का जो कमर्शियल कॉस्ट है, अदरवाइज दोनों ये ओपन सोर्स है, फ्री में मिलता है। पाइथन फ्री में मिलती है, पावर बीआई फ्री में मिलती है, बट फिर भी जब आप इसको कमर्शियली परचेज करने लगे तो पावर बीआई का कॉस्ट कम है एंड टैब्ल्यू का कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। और टैब्ल्यू के साथ लोग बहुत कम फैमिलियर हैं, तो ये सब चीजें दिमाग में रखना है आपको। अगर आप मेरी गाइडेंस में चले तो मैं आपको यही कहूंगी, पाइथन प्लस पावर बीआई और प्लस एसक्यूएल, ये सब सीखिएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, राइट। एंड टेस्ट, अगर आपने सुने हैं अनोवा टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको लगाने आने चाहिए। एंड बहुत हाई फाई स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए इतना स्टैटिस्टिक्स इनफ है, ओके। डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए कह रही हूँ। अगेन नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि अब डेटा एनालिस्ट तो बन गए, अब डेटा साइंटिस्ट बनना है, तब क्या करना है? तो फिर मशीन लर्निंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। वो बात की बात है, अभी इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। So today's index for today's session on data analysis with Python. What is data analysis? Actual example use cases. Data analysis क्यों इतना important है, क्यों इतना यूज में है, and why only Python? Okay. And Python installation प्रैक्टिकली रहेगा। अभी आज आपको इंस्टॉलेशन हम सिखाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी वैसे ये एक सेशन में हो चुकी है, बट आई विल रिपीट दिस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। एंड अगेन पाइथन आईडीई, ये सब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करवाऊंगी वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। और आज से ही ये अपना एक एम बना लीजिए कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, ठीक है। बट अगर आपका कोई भी टॉपिक पॉइंट मिस होता है या आप लाइक इतने ध्यान से नहीं इसको लेते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, एक भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, ओके। स्टार्ट। व्हाट इज डेटा एनालिसिस? एक्चुअल डेटा एनालिसिस में आपको पता है हमेशा 4 ही हमारे स्टेप्स जो मेन रहेंगे, इसके बाद के स्टेप्स भी हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप्स एक डेटा कलेक्शन, so gathering data from various sources, and various sources mean databases mean Excel, yes you can say that, SQL, MySQL, है ना, ये सारे के सारे आपके डेटाबेसेस हैं, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, ये अभी मैंने आपको बताया। वेब स्क्रैपिंग एक अलग से कोर्स है, अगर आपको वेब स्क्रैपिंग सीखनी है ये अलग से एक कोर्स आता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट से, ओके। एपीआई ये भी एक अलग टूल है डेटा एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। इनको सीखना है तो ये अलग अलग आपका कोर्स मॉड्यूल रहेगा, राइट।
सेकेंड, डेटा क्लीनिंग। जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि डेटा हर टाइम बहुत अच्छा आ रहा है और क्लियर डेटा आ रहा है? कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा लिया और पता चलता है कि उसमें 10 एंट्री थी जिनके फोन नंबर मिस थे या जिनकी लोकेशन मिस थी, ठीक है, या फिर ऐसा हुआ कि जिन्होंने फ्लिपकार्ट से जिन कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस किया था उनकी लोकेशन मिस हो गई, है ना, तो डेटा एनालिसिस कैसे होगा? तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, डेटा क्लीनिंग में आती है। सो जो एरर होंगी उनको रिमूव करेंगे, करेक्ट करेंगे। डेटा अगर इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंसी मीन डेटा कहीं पे कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है, तो उसे कंसिस्टेंट फॉर्म में लाएंगे। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, ऑब्वियसली अगर किसी कस्टमर का डेटा ही मिस है उसे एनालाइज क्या ही करेंगे आप। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स, यस, बता सकते हैं आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स, please do participate, candidate, please make this session more interactive. आउटलायर्स, गलत सही कुछ भी बताइए। आउटलायर्स, मैम outliers are the values within dataset. Ma'am, outliers are values within a dataset. रिपीटिंग, Ma'am, outliers are the values within a dataset. हाँ, तो ऑब्वियसली विद इन द डेटा सेट आई एम आस्किंग कि आउटलायर्स है क्या? आउटलायर्स तो डेटाबेस में ही होगा, उसी को तो रिमूव करने की बात हो रही है। बट आउटलायर्स होते क्या है? डुप्लीकेट समझ आता है कि आप बंदे का फोन नंबर 2 बार डुप्लीकेट हो गया, है ना, 2 बार एंट्री चली गई और डुप्लीकेसी है। बट आउटलायर्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। different यस, from all over data. डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर द डेटा, यस, करेक्ट। एक्चुअल इसका एग्जांपल इस तरह से समझते हैं। चलिए, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है ना, और हमें एनालिसिस करना है एनसीआर का टेम्परेचर, यहाँ का जो भी आपका है उसे एनालिसिस करना है। अब जब एनालिसिस कर रहे थे तो पता चलता है कि दिल्ली में जो टेम्परेचर था वो आपने लिख दिया 100 डिग्री। अब बताइए 100 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है? यहाँ पे 45 पे पूरा हाल है, तो 100 पे क्या होगा? अब वो वैल्यूज तो है, राइट, मिसिंग भी नहीं बोलूंगी क्योंकि वैल्यूज पड़ी है, बट वैल्यू क्या है? रॉन्ग है, वो आउटलायर है। आउटलायर ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूज है, दिखते वैसे ही है, बट उनका वर्क उस तरह से नहीं होता। अब जब मैं अपना विजुअलाइजेशन करूंगी, जब हम अपना ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कैसे होगा? ऑब्वियसली 100 डिग्री है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और मेरा सारे का सारा जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन खराब होगा। अब ये आउटलायर्स मेरी सारी डेटा एनालिसिस खराब करेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर होता ही नहीं है ना। कभी किसी सिटी का इतना तो नहीं हुआ ना, इससे ज्यादा 100 तक जाएगा तो फिर तो सर्वाइव ही नहीं है ना, ह्यूमन लाइफ का तो सर्वाइव ही नहीं है। सो ये 100 नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या सोचूं, अब आउटलायर्स को कैसे खत्म किया जाए? अब मुझे इतना पता है कि यस, एनसीआर में 48, 47, 49 तक टेम्परेचर गया है, तो मैं क्या करूंगी, आउटलायर्स को मैं इसे प्रैक्टिकल बताऊंगी करके आपको, ठीक है? अभी आप थ्योरेटिकल पढ़ समझ रहे हो टर्म्स को, हम इसे प्रैक्टिकल एक एक चीज को मैं बताऊंगी, आउटलायर्स को कैसे खत्म किया जाता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, और हमेशा हार्ड वर्क ठीक है, लेकिन कई बार हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है? वो स्मार्ट वर्क कैसे होता है, कैसे हम अपनी टेक्निक्स यूज करके आउटलायर्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारी हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस, राइट? अब आपका डेटा एनालिसिस फॉर्म में डेटा आपका तैयार हो गया, मींस आपने जितनी एरर्स थी वो निकाल दी, आउटलायर्स निकाल दिए, मिसिंग वैल्यूज भी आपने हैंडल कर ली, डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दिए। अब आपका डेटा जो 70 का साइज दिखा रहा था, जिसमें बहुत सारी डुप्लीकेट्स थे, वो सारे सॉल्व होके अब आपका स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली 50 का बन गया। डेटा सेट का साइज 50 का हो गया, मतलब 50 एंट्री की बात कर रही हूँ। पहले 70 एंट्री दिख रही थी,
क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। उसे रिमूव किया, सही किया, अब वो एक्चुअल जो डेटा है 50 का साइज बन गया। अब मैं उसे क्या करूंगी, अब थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड वाले फेज में। अब डेटा एक्सप्लोरेशन होगा। अब डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ईडीए टेक्निक लगती है, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये सारा प्रैक्टिकल होगा आगे, ठीक है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, मीन मीडियन मोड लगेगा, ठीक है। आगे डिपेंड करता है कि आपका डेटा सेट का टेस्ट क्या है, आपको वहां पे रिग्रेशन लगाना है, कोरिलेशन लगाना है, आप चाहते क्या है। पहले तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कोरिलेशन कहाँ लगता है, रिग्रेशन कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस करते समय एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मीन कहाँ पे लगता है, किस टाइप की वैल्यूज होती है तो मीन लगता है, किस टाइप का डेटा सेट हो तो वहां पे मीडियन लगेगा या मोड लगेगा, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक हम इसमें समझेंगे, डेटा एक्सप्लोरेशन में, ईडीए में। फोर्थ लास्ट में डेटा अब रेडी हो गया आपका। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो आपका मॉडिफाइड डेटा है, जो भी डेटा आपने अभी करेक्ट किया था, ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन। दो चीजें होती है कि डीनॉर्मलाइजेशन होती है कि नॉर्मलाइजेशन होती है। जो डीनॉर्मलाइजेशन होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, डेटा पता ही नहीं कहाँ पड़ा है, कैसा पड़ा है। क्योंकि जब भी डेटा कलेक्शन होता है ना, वो कई बार आप देखते होंगे जब आप गूगल से भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो अननेसेसरली फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, है ना। फिर आप क्या करते हैं, परसेंटेज 10% रन विंडो में जाके टाइप करते हैं और जितनी टेम्परेरी एक्स्ट्रा फाइल्स होती है उसे रिमूव करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। अगर वो नहीं करोगे तो आपका सिस्टम जो है एकदम से डंप हो जाएगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेमोरी आपकी कंज्यूम ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं कि डेटा, अब मैंने अपने डेटा सेट को बहुत ही नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है टू इजली कैन बी इजली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज्ड। नेक्स्ट, डेटा मॉडल। डेटा मॉडलिंग, यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना है तब आपको ये डेटा मॉडलिंग भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसमें किस तरह के मशीन एल्गोरिदम्स लगते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करके डेटा विजुअलाइजेशन कर कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। बट अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर ये वाला पार्ट बीच में एक ऐड कर लीजिए, ठीक है। डेटा मॉडलिंग करनी आनी चाहिए आपको मशीन एल्गोरिदम के साथ। अदरवाइज सिंपल मॉडलिंग भी होती है, वो तो सिंपल मॉडलिंग आप नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है, ठीक है। बट आपको खुद टेक्निक्स अप्लाई करनी है तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे। एंड लास्ट में डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, मींस क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। और अगेन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन की ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये सारी की सारी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज होती है, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, प्लॉटलिब, ठीक है। यहाँ पे सारा आपका पाइथन यूज होगा। लास्ट में जब आपका एनालिसिस हो गया, लास्ट में क्या रहता है, सिर्फ कंटेंट राइटिंग का काम रह जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। लास्ट में कंक्लूजन है कि ये मेरा डेटा सेट था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, अब ये कंक्लूजन है, ठीक है। सो ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ओके। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, समझ आ गया। डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसका ये साइकिल प्रोसेस है कि आपको पहले दिन जब आप कंपनी में चले गए, सबसे पहले वो आपसे डेटा कलेक्शन का काम करवाएंगे। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना आता है तभी वो आगे काम करेंगे। तो ये आपको साइकिल समझ आ गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज केसेस। नंबर 1, बिजनेस। अब डेटा एनालिस्ट की इतनी मार्केट है, इतनी डिमांड है, क्यों? क्योंकि बिजनेस मैन को भी डेटा एनालिसिस की जरूरत है। मार्केट एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, है ना, जिसमें आपने अगर पढ़ा है डेटा माइनिंग सब्जेक्ट, उसमें कॉन्फिडेंस
स्पोर्ट, लिफ्ट, ये 3 चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल्स फोरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके सारी टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर में पेशेंट का एनालिसिस करना है, उसकी डिसीज प्रेडिक्ट करनी है। जब डिसीज प्रेडिक्शन करनी है तो ऑब्वियसली मशीन एल्गोरिदम यूज होंगे, मशीन लर्निंग आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मशीन लर्निंग आनी चाहिए, अदरवाइज मशीन लर्निंग में नहीं जाना तो सिंपल जो मैंने आपको लैंग्वेज टूल बताए हैं तो डेटा एनालिस्ट तो बन ही जाओगे आप। आगे थर्ड है फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए मुझे डेटा एनालिसिस, आप मान के चलिए कि आपकी जो जॉब है सिर्फ आईटी कंपनी नहीं है, इसीलिए इसकी इतनी मार्केट है। मेडिकल वाला बंदा सिर्फ मेडिकल लाइन तक सीमित है, आर्मी का बंदा आर्मी तक सीमित है, राइट। सोशल मीडिया में कोई जाना चाहता है तो वो वहीं तक, डिजिटल मार्केटिंग है तो उसी तक की सीमित है। लेकिन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एक ऐसी जॉब, करियर जॉब अपॉर्चुनिटी बन चुकी है आज के टाइम में, जिसकी वैकेंसी आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दो तो मिल ही जाएंगी। अभी इंडिया में अभी भी अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी बहुत ज़्यादा जो डिमांड है वो फॉरेन में तो है ही है, कनाडा में बहुत इसकी वैकेंसी है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट की डिमांड चल रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ मोटे मोटे 4 एरियाज लिखे हैं, इसके अलावा भी हर जगह पर डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ने वाली है। मीन्स ये वो बंदे हैं जो अगर जॉब नहीं है लेकिन डेटा आपको एनालिसिस करना आता है, ठीक है, आप घर बैठकर भी ये काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लो आप फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग आपको अगर नहीं पता है तो हम वो भी किसी दिन डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे कैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके पैसे कमा सकते हो। तो ये इस टाइप का ये एक करियर पाथ है, बहुत अच्छा। और आंख बंद करके जिसने भी तक पीछे कुछ नहीं किया या कुछ छूट गया तो भूल जाइए, आज से स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे तो अब सीखना है और आप बन के ही रहना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि वाई पाइथन। सुनो, as I discussed earlier, Python is good for data science, machine learning, data visualization, and data application, web development, right? ये सारे मैंने एरियाज आपको बताए हैं कि क्यों पाइथन और कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे भी आज पाइथन यूज हो रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर पाइथन यूज हो रही है। आपको आइडिया है कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे आप कोई भी एक आइटम सर्च करते हैं और उसके कितनी सारी रिकमेंडेशंस निकल आती हैं, देखा कभी आपने? आप सर्च करते हैं आज गूगल में कि आई वांट एक किचन के कोई सामान का सर्च किया आपने, ठीक है, कोई आपको ग्लास सेट चाहिए, कप सेट चाहिए, आपने सिर्फ गूगल पे सर्च किया, एंड जब आप फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोलते, कुछ भी आप कोई दूसरे सोशल मीडिया में स्विच करते हैं, आप देखेंगे वो एड, वो रिफ्लेक्शन आपको वहां भी दिखेगा। वो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? हाँ, गूगल असिस्टेंट। हाउ? गूगल असिस्टेंट? नो। आप YouTube पर कोई आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर सर्च कर रहे हैं या अमेजन के ऊपर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने तो खाली एक ही ई कॉमर्स साइट के ऊपर सर्च किया था, लेकिन वो दूसरे के ऊपर भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। आप फेसबुक खोल रहे हैं, वहां पे आपको रिफ्लेक्शन उसका दिख रहा मैम है। वो डेटा का यूज करते हैं हमारे। नो, मैम डेटा का जो हम एनालिसिस कैसे? नहीं मैम, वो हमारे डेटा का यूज करते हैं। मैम जैसे कि हम एआई के जरिए। किसी यस, भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो मशीन लर्निंग के थ्रू वो हमारे यस, डेटा का यूज मशीन करते हैं। लर्निंग, एग्जैक्टली, एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग की हेल्प से एल्गोरिदम, इस टाइप के एल्गोरिदम लगा दिए गए हैं अब हर एक चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स लग गए हैं कि वो कोई भी चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। आप इस समय अगर आपका मन कर रहा है ना कि आप किसी से बात कर रहे हैं कि आज तो बर्गर खाने का मन कर रहा है, और पता चलता है रात को जब आप फेसबुक खोले वहां पे बर्गर की इमेज दिख रही है आपको,
आपको जितने भी वो वहाँ के होटल्स हैं या कुछ भी, आपको कोई ना कोई रिफ्लेक्शन आपको जरूर दिखेगा। इतना एडवांस हो चुका है। ये सारा कहाँ से आ रहा है? सब मशीन लर्निंग की करामात है। एंड मशीन लर्निंग अगर आनी करनी है तो फिर ऑब्वियसली पाइथन तो आनी ही चाहिए। एंड पाइथन आने के लिए क्या करना है? सिर्फ हार्डवर्क करना है, सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने का, सिर्फ बेसिक सीखना है एंड डेटा एनालिसिस कैसे होता है ये सीखना है। एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक दो सीख लोगे, आराम से आपका बेसिक्स डेटा एनालिस्ट का तैयार हो जाएगा। तो ये इतनी स्मार्ट एंड एडवांस लैंग्वेज है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। वी कैन यूज पाइथन एवरीवेयर बिकॉज पाइथन इज नोन फॉर इट्स जनरल पर्पस नेचर्स, है ना। वेब डेवलपमेंट ये तो हम नहीं करेंगे, ये वेब डेवलपमेंट तभी करना है अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें जाना है तो वेब डेवलपमेंट विद पाइथन कर लेना। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ये सारे आईटी के पार्ट हैं, अगर वो करना चाहते हैं। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस एप्लीकेशन है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अब ये देखो पाइथन हर किसी की हेल्प कर रही है। अगर मैं यहाँ पे आर लिखती, आर लैंग्वेज, तो आर लैंग्वेज सिर्फ डेटा एनालिसिस करती, सिर्फ ये वाला पार्ट करती, वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं करती, वो कभी गेम नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आर एक स्टैटिस्टिकल पैकेज है, लैंग्वेज है, नो डाउट वो लैंग्वेज है, बट वो एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है जो सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन की भाषा जानती है, बाकी चीजों का उसे नहीं पता। अगर फिर भी मैं बहुत क्लियर कट नहीं ऐसे बोलूंगी कि हाँ आर तो कुछ और नहीं कर सकती। यस, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि थर्ड पार्टी टूल के साथ एक्सटेंशन जो एड-ऑन्स होते हैं उनको मर्ज करके अगर आप काम कर सकते हो, यस देन यू कैन डू, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इतने हम झंझटों में पड़े ही क्यों, अगर पाइथन ने सब कुछ दिया ही है हमें, है ना। तो घर के पास से कोई चीज मिल रही है तो मैं उसको लूंगी या अपनी 10 किलोमीटर दूर जाके वो चीज को लेने जाऊंगी? ऑब्वियसली जो पास में है, जो पास में क्या है, पाइथन है, तो उसको लेना ज्यादा सही है। अब इंस्टॉलेशन सीखते हैं। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम पे कर ली है, बट मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, आप सिर्फ खाली फॉलो करते जाइए, मेरे साथ साथ इंस्टॉलेशन करिए एंड मेक श्योर सबके पास सिस्टम हो, लैपटॉप हो। अगर कोई सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए ये कोर्स कर रहा है, देख रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो टाइम वेस्ट होगा। तो सिस्टम के साथ बैठिए तभी ये प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। So all Python releases are open source, okay, but historically not correct. Python के कुछ रिलीज हैं जो कि ये लाइसेंस बेस्ड हैं, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के लिए ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन जिसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदना है, एमएस ऑफिस खरीदना है, तो लाइसेंस चाहिए, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। एंड अगर आप गूगल से लेते वो क्रैक वर्जन होते हैं, ओके। अदरवाइज अगर आपको ओरिजिनल चाहिए, जैसे विंडो है, एमएस ऑफिस है, ये सारे के सारे लाइसेंस बेस्ड है। स्टेप 1, yes, you can even type simply Google आप सिंपल लिख सकते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन, ठीक है। आपको पहला लिंक मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। सबकी खुल गई ये विंडो? यस यस ओके, मैम। Yes. ये देख सकते हैं, ये सारे प्रीवियस वर्जन है इसके, देखिए 3.13 3.12 नहीं पढ़ना, डेसिमल के बाद की वैल्यू को सिंगल रीड करते हैं, ठीक है। सो 3.13, 3.12, 3.11 ये सारे ओल्ड हमारे रिलीजेस हैं। अगर आपको ये यूज करने हैं यू कैन यूज, बट न्यू वर्जन 3.12, ठीक है। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड करना। मेरे पास विंडो है, मैं विंडोज पे करूंगी। जो एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो उनके लिए ये है, लिनक्स यूनिक्स के लिए ये है। ओके, आई होप सबके पास विंडो हो। डबल क्लिक मैं अभी नहीं करूंगी, मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रही होगी, नीचे 2 चेक बॉक्स आ रहे होंगे, दोनों चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। ऐड पाथ करके एक ऑप्शन आ रही है, यस। आपको नीचे 2 चेक बॉक्स दिख रहे होंगे, वो दोनों चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। और 2 ऊपर ऑप्शन आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को क्लिक करिए। एक्चुअली अगर मैं सिस्टम पे दोबारा करूंगी तो मुझे अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो फिर टाइम वेस्ट होगा। यस, अगर किसी के पास राइट है स्क्रीन शेयर करने का, तो वो एक बच्चा स्क्रीन शेयर करे, मैं उसके ऊपर बता दूं कि आपको किस किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं। यस, डिड यू हैव एनी राइट फॉर स्क्रीन शेयरिंग? किसी के पास स्क्रीन शेयर करने का राइट आ रहा है? Yes, ma'am. Many of students, we have given right to many students. ओके Just you have to stop sharing and then they can share. ओके ओके सर। ओके स्टूडेंट, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके, यस प्लीज। One of the students mentioned, I can't understand Hindi. Actually, sir, I think Mindshare युवा कोऑर्डिनेटर, ये लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम थी, मेरे दोनों लेक्चर इंग्लिश में गए थे तो भी ये प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने स्विच किया लैंग्वेज। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं, बट सिर्फ एक को ही प्रॉब्लम आ रही है। यस, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पिक करना है। यस, ओके, अगर प्री इंस्टॉल्ड है तो गुड है। Ma'am, I am Yes. sharing, ma'am. Yes, yes. Download. Yes. Yes. Click both the option checkbox. Customize the. Click on customize installations. स्टूडेंट, आगे के सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक आपको रियल टाइम डेटा सेट लेकर हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। और बट आपका ये इंस्टॉलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मैम एक क्वेरी थी जरा। यस यस प्लीज। मैम ये बताइएगा, विजुअल स्टूडियो कोड पर हम लोग कर सकते हैं अगर पाइथन उस पर बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। विजुअल स्टूडियो यू कैन यूज विजुअल स्टूडियो। हाँ, अगर आपका विजुअल स्टूडियो है, डोंट वरी, आप कर लीजिए आराम से। थैंक यू मैम। विजुअल स्टूडियो IDE है, उसके बारे में अभी मैंने बताना है आगे। मैं यहाँ पे जुपिटर यूज करूंगी। ओके, पाइचार्म, जुपिटर, पाइचार्म एंड स्पाइडर, विजुअल स्टूडियो, जो भी आप करना चाहिए वो IDE है, वो तो yes, you can use anyone. Setup failed because fatal error आ रही है सर आपकी।
I'm not able to read this font size. सर आप CMD टाइप करिए रन में जाकर. ओके प्लीज यू कैन चेक योर पाइथन वर्जन्स. सिंपली टाइप CMD prompt and type python. एंटर. यस मेरे पाइथन इंस्टॉल्ड है. देखिए पाइथन 3.12 मेरे लिखा आ रहा है. अगर लिखा आ रहा है देन ओके, आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है. और सर आपके क्या लिखा आ रहा है? आप कैंसिल करेंगे पाइथन. यस सिंपल पाइथन लिखिए, एंटर. ओके पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है अभी. एनी हाउ आप ऐसा करिए, यहाँ पे लिखिए, एंटर करिए, एंटर. यस देखिए 2 + 2 2 + 2 एंटर. नहीं तो आप ऐसा करिए सर, कंट्रोल पैनल में जाकर, अगर किसी के ऐसे प्रॉब्लम आ रही है कंट्रोल पैनल में जाकर इसे अनइंस्टॉल करिए, बिकॉज आधी सिस्टम फाइल्स इंटरप्ट हो गई है. आपको कंट्रोल पैनल में जाकर इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, दोबारा से इंस्टॉल करिए. तो 2 मिनट. हाँ यस इसे क्लिक. नो 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 कस्टमाइज. यस ओके नेक्स्ट. स्टूडेंट जब भी आप इंस्टॉलेशन करें प्लीज है ना उन पॉइंट्स को पढ़ जरूर लीजिए. बहुत फटाफट जब हम टिक करते हैं ना नेक्स्ट तो वो चीज़ें रह जाती है. जैसे अभी भी एक पॉइंट हमारा मिस हो गया. एनी हाउ विल सी. Yes, now successfully. Okay, great. Again, how you can check Python installed or not? Simply type CMD. Again, check command prompt. ये प्रैक्टिस जरूर रखिए. कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए. Python. Yes, very good. Installed. चलिए अब तो पाइथन तो इंस्टॉल हो गई. अब आपका कहना है क्या मैम इंस्टॉलेशन एनालिसिस स्टार्ट कर दे? मेरा कहना होगा नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि पाइथन आपका एक अच्छा पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. पहली बात, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है. वो इंटरप्रेटर यूज कैसे करता है? क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 ट्रांसलेटर्स रहते हैं, राइट? तो 3 ट्रांसलेटर में से फर्स्ट इज असेंबलर, सेकंड कंपाइलर एंड थर्ड इंटरप्रेटर, है ना? पाइथन के सॉरी ये आपके कंप्यूटर के 3 ट्रांसलेटर हैं. ये ट्रांसलेटर करते क्या है? ये आपके सोर्स कोड को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं. मींस जो आप लोग लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो उस ट्रांसलेटर का काम होता है. अब ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं? कंप्यूटर को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है ना, और आपको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है 010101. आपको क्या पता? अब इसने पाइथन लिखा है, हमने पाइथन लिखा है, तो कंप्यूटर कैसे पाइथन समझ रहा है? नहीं, उसके लिए 10001 उसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. तो ये सारी जो कन्वर्सेशंस रहती हैं इसके लिए एक ट्रांसलेटर रहता है ना. जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ एक स्टूडेंट को जिसको हिंदी समझ नहीं आ रही, और जब मेरे ये 2 लेक्चर इंग्लिश में थे तो बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी. तो बीच में एक ऐसा ट्रांसलेटर बिठाते हैं जो कि मेरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उनको समझाए. तो पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, पहली बात.
ट्रांसलेटर समझ गए, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि पाइथन कंपाइलर यूज नहीं करता, बैकएंड पे वो खत्म नहीं होता, लेकिन फ्रंट एंड पे जो आपको दिखाएगा वो इंटरप्रेटर ही आएगा। जब भी अपना कोड आप डिबग करेंगे, आपकी डिबगिंग होगी, तब आपको इंटरप्रेटर करता है कि लाइन बाय लाइन एरर शो करता है, ठीक है, गलती करी उसी समय दिखाता है, कहाँ है वो दिखाता है। कंपाइलर का डिसएडवांटेज क्या है कि वो लाइन बाय लाइन आपको एरर नहीं बताता, वो इकट्ठा बता देता है ये एरर है अब ढूंढ लो, अब उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है ना। सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है, C++ कंपाइलर यूज करती है। अब उसमें क्या एरर आ जाती है, एरर में हम लोग ढूंढते पूरा दिन लगा लेते, पता ही नहीं कौन सी लाइन में एरर है, लेकिन इंटरप्रेटर मेरा टाइम सेव कर रहा है ना। इंटरप्रेटर मुझे लाइन वाइज लाइन एरर्स बताता है, तो इंटरप्रेटर बेस्ट है, ठीक है। सो पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये सबको क्लियर है। आगे फिर मैंने अभी बात करी थी कि मैं इसके ऊपर कोड क्यों नहीं करी। अगर मैं इसको लिखूं 2+2 2+4 6 हो तो रहा है, हेलो टाइप करूं, सॉरी हेलो टाइप करूं, हेलो आ रहा है, सब हो तो रहा है, तो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, पर इसके ऊपर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि पाइथन ने हमें बहुत सारी जो लाइब्रेरीज होती है ना, जब हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस में जो हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती हैं, हम लाइब्रेरी आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे, बताऊंगी मैं डिटेल में आपको, वो हमें IDE बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो हमें सारी की सारी लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है। आपको खाली इंपोर्ट लिखना है तो अपने आप वो इंपोर्ट भी कर देगा, लेकिन ये चीज यहाँ पे करनी और बहुत बड़ा बड़ा कोड करना वो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, हाँ, लेकिन इतना याद रखिए, भले IDE ही यूज करिए लेकिन पीछे पाइथन होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन इसकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसे नेक्स्ट है मेरा IDE। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि kindly use an IDE for data analysis and large scale development। IDLE इसको लार्ज स्केल जो हमारी डेवलपमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती है, तो प्लीज IDLE मत यूज करिए, IDE ही यूज करिए। जैसे अभी एक कैंडिडेट ने बोला है मुझे कि क्या मैम हम विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं, यस यू कैन यूज विजुअल स्टूडियो एज वेल, व्हाई, क्योंकि वो IDE है। अब IDE होता क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा क्यों, इंटीग्रेटेड का मीनिंग ऐसा है इकट्ठा, वो सारी लाइब्रेरीज को, सारे मॉड्यूल्स को, सारी फंक्शनैलिटी को एक ही जगह पे रख के बैठा है, भी आओ और यूज करो, वो आसान है ना। तो अगर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूं, पाइथन का IDLE यूज करूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगी, लाइब्रेरीज ही नहीं है, ये लो IDLE दिख रहा है आपको, ये इसी का ही है, पाइथन का ही है, इस फ्रेमवर्क का। अगर मैं इसके ऊपर 2+2 करूं, सॉरी 2+2 करूं, तो 7 तो आंसर दे रहा है मुझे, कोड भी करेगा, बट जब मैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट एनालिसिस करूंगी ना, तो ये मुझे बहुत परेशानी देगा। क्योंकि याद रखिएगा, बेस्ट प्रोग्रामर, बेस्ट डेटा एनालिस्ट वही होता है जिसका LOC होता है लाइन ऑफ कोड, जितना कम होगा उतने तुम बेस्ट हो, उतने बेस्ट प्रोग्रामर हो, समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर की मेमोरी और रैम आपकी 256 MB है और सॉफ्टवेयर बना दिया 70 GB का, तो हो गया काम, फिर तो चलेगा नहीं, है ना। तो हमेशा सॉफ्टवेयर का जो साइज है वो हार्डवेयर के कंपैरिजन कम होना चाहिए, तभी आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में बिकेगा। याद रखिए, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, अगर उसका आपका LOC लाइन ऑफ कोड, जितना लाइन ऑफ कोड कम होगा ऑब्वियसली साइज कम होगा, साइज कम होगा तो आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को चलाइए, कंपैटिबिलिटी इशू आएगा ही नहीं, है ना। कंपैटिबिलिटी इशू कब आता है, जब सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा हो, अभी आएगी प्रॉब्लम। जिनके सिस्टम में लाइक हार्ड डिस्क या रैम कम है, वो जब पावर BI टैब्ल्यू इंस्टॉल करोगे ना, वहां पे एरर आएगी, स्पेस एरर आएगी,
ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में से फालतू की फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा, इसको स्पेस बनानी पड़ेगी। तो ये समझ आ गई बात आपको कि एलओसी कम होना चाहिए, और इसके ऊपर अगर मैं कोड करना स्टार्ट कर दूं, मेरा एलओसी बढ़ जाएगा। एक एक लाइब्रेरी को बुलाने के लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, और इसी की जगह पर अगर मैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज करूंगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसे क्लोज कर दूं, मुझे ये प्रॉब्लम देने वाला है, मैं इसे क्लोज कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आईडीई यूज करना पड़ेगा। अब आईडीई क्या होते हैं, विजुअल स्टूडियो, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था, बहुत सारे हैं, मैंने अभी 4 ही लिखे हैं क्योंकि जो अभी तक मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है जी, PyCharm है, Jupyter Notebooks, Python and Visual Studio. There are several Python integrated development environment available in the market. You can use any, PyCharm used for coding purpose. अगर आपने कोई वेब डेवलपमेंट करनी है, गेम एप्लीकेशंस बनानी है, तो PyCharm यूज करिएगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ डेटा एनालिस्ट बनना है, खाली एनालिसिस करने हैं, तो जुपिटर और स्पाइडर दोनों में से कोई एक चूज कर लो। विजुअल स्टूडियो भी कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो खैर दोनों के लिए अच्छा है, एक आप कोड भी कर सकते हैं इसके ऊपर और एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये भी बहुत एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कोड की बात नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग खाली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्योर कोडिंग की बात नहीं आएगी ना, यहाँ पे कोई फाइल हैंडलिंग नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना, जब फाइल हैंडलिंग की बात आएगी वो कोड, प्रॉपर कोड में चली जाएगी। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात नहीं करूँ, या मुझे खाली एनालिसिस करनी है, तो मैं जुपिटर यूज करूँगी। गॉट इट? ये सारे के सारे आपके आईडीई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए, अब आईडीई इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि आईडीएलई यूज नहीं करना है, मैं अब इसको यूज करूंगी। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए, ये जो सारे के सारे टूल है ना, ये जैसे होता है ना, एक शॉपकीपर, एक थर्ड, एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, वो सारी चीजें लेके बैठे होते हैं, जाके उनसे खरीद लो। इसी तरह से एक एनाकोंडा है। एनाकोंडा इज अ थर्ड पार्टी पर्सन है, या इसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। कैसा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट लेके अपने पास बैठा है, भी आइए खरीदिए और जाइए। ठीक है, सो इसी तरह एनाकोंडा। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो सारे के सारे ये टूल्स को लेके बैठा है, कोई भी ले लेना, आराम से देगा आपको। चलिए अब इंस्टॉल करें एनाकोंडा। सर पॉसिबल प्लीज शेयर योर स्क्रीन फॉर एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। ओके मैम। Yes, students, all are okay for this workshop. अगर कोई अब आज का लेक्चर तो क्लास जो है मैंने बहुत ही एक लेमन फॉर्म में दिया है, मेरे पहले 2 सेशन इस तरह से नहीं थे, बट हम लोग उसी फॉर्म में समझते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, जिससे हमें समझ आती है ना। बहुत ज़्यादा ऑफिशियल या प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही मैं, बहुत लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए, और इसके बाद फिर अगर मौका मिले तो हम बाकी के टूल भी इसी तरह सीखें। यस, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करिए, ईमेल एड्रेस। स्टूडेंट्स प्लीज टाइप एनाकोंडा ऑन गूगल सिंपली, एंड एनाकोंडा की जो फर्स्ट लिंक है वहां पे जाएंगे। ठीक है, ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। हाँ यस, सर ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। साउंड ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। ओके, टाइप योर ईमेल आईडी यहाँ पर एंड click on download option. Downloading start. It will take some time. It will take some time, so you can ask your doubts. अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है, अगर आपको कोई बात करनी है, कोई डाउट्स हैं,
आगे पीछे कभी के भी वो आप पूछ सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल ABCD आपके लिए एंड स्मॉल ABCD आपके लिए सेम है ना, बट कंप्यूटर के लिए वो डिफरेंट है। हाउ कंप्यूटर डिफरेंशिएट फ्रॉम कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स? ASCII वैल्यूज की डिफरेंट होती है। यस। हाउ ASCII कोड इज वर्किंग, कैसे काम कर रहा है ये कंप्यूटर के अंदर। ओके, चलिए इस पे बात करते हैं जब तक इंस्टॉलेशन होती है। सी कैपिटल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ओके, मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं शायद सर? ओके, yes, screen is visible or not? No ma'am. नहीं हो रहा। ओके, now I think yes, now कैपिटल स्मॉल ए एंड कैपिटल ए है ना, तो ये दोनों डिफरेंट है या सेम है? कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है। हाउ? यस, एज स्टूडेंट मेंशन्ड कि मैम ASCII कोड होता है। यस, ASCII कोड होता है। यस, बट ASCII कोड कैसे काम करता है? मैम हर अल्फाबेट और नंबर को एक कोड दिया जाता है। ओके, जैसे कैपिटल ए को 65 और मतलब सारे जो अल्फाबेट्स हैं कैपिटल ए 65 एंड A to Z आप 65 प्लस 26 है ना लगा लीजिए, यस है मैम। ना, तो वो आपके चले जाएंगे 65 66 67 काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। एंड स्मॉल ए एंड फ्रॉम 97 वेरी गुड। अब देखिए काम कैसे करता है, कैसे काम करेगा। अब देखिए ए की वैल्यू 65 है, मींस ए अब इक्वल टू 65 है एंड बी इक्वल टू 66 है। अब मुझे मान लीजिए लिखना है IIT, अभी IIT सेशन चला रही है माइंडशेयर के साथ IIT। अब IIT मैंने लिख दिया, कंप्यूटर ने लिख दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिख रही ना, लेकिन अंदर कितनी वो उलझने हुई होंगी, कितनी लड़ाई झगड़े हुए होंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। यू नेवर। आई का मीन आई कितने कौन सी वैल्यू पे स्टोर होगा, प्लस कर लीजिए। अगर A 65 है तो आई कौन से नंबर पे होना चाहिए? यस, 73। ओके, मैंने काउंट नहीं किया, आप ही के कहने पे 73, फिर 73 आई टी कौन सी वैल्यू पे होगा? यस, टी कौन सी वैल्यू पे है? 85। चलिए, अब क्या होगा, इस ये सारी वैल्यूज है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना आता है ना। एलसीएम क्या करिएगा, 2 से एलसीएम जब निकालते हैं तो 2 के साथ करते हैं ना डिवाइड हमेशा। यस तो क्या मैम। होता है, अब मैं अभी करूंगी तो नहीं इतना लंबा काम। 73 85 आप क्या करेंगे, 2 के साथ इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 73 का एलसीएम निकालना, चलिए मैंने ऐसे लिख लिया मन से 1001 करके कोई वैल्यू आई। 73 अगेन 110
1 85 85 को जब 2 से डिवाइड किया, एलसीएम निकाला, हो सकता है इसकी कोई वैल्यू ऐसे आई हो, सॉरी मैम इट विल बी 84। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वैल्यू आई है ना। अब ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, अब ये कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। और हम हमेशा बात करते हैं कंप्यूटर तो जी एक ही लैंग्वेज में बोलता है, बाइनरी में, 0 1 0 है ना, 1 0 0 1, 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन, मीन वो ऑन ऑफ की भाषा समझता है, बाकी तो उसे कुछ नहीं आता है ना। तो ये जो 1 1 1 0 0 1 है, अब हमारे अगर मान लीजिए ट्रांसलेटर ना होते, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, अगर ये ट्रांसलेटर ना होते तो क्या आप ये 1001 ये सबको समझ पाते? नहीं, आप ये नहीं समझ पाते, कंप्यूटर ये नहीं समझ पाता, उलझन फिर है ना। तो क्या होता है, ये कन्वर्जन, ये सारे अंदर जो हमारे लगे हैं ना, हमारे अर्थमेटिक कंट्रोलर लगे हुए हैं सीपीयू के अंदर। आपने कभी सीपीयू का स्ट्रक्चर खोलना आज गूगल में, आप देखेंगे अर्थमेटिक कंट्रोलर लगे हैं बहुत सारे, सीपीयू का पूरा एक अपना ही एक अलग मॉडल होता है, उसे पढ़िएगा, उसमें सारी की सारी ये कन्वर्जन्स होती हैं, और ये सारी कन्वर्जन विद इन अ नैनो सेकंड होती हैं। और आपको लगता है ये तो अभी मैंने आईआईटी लिखा था और उसने टाइप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। नैनो सेकंड कन्वर्जन होती है और आपको डिस्प्ले होती है, ठीक है। आगे डिपेंड करता है, फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि प्रोसेसर बहुत बढ़िया होना चाहिए, जितना फास्ट प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी, आपकी रैम का साइज बड़ा होना चाहिए सो दैट एग्जीक्यूशन टाइम कम हो, है ना। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो इसीलिए कैपिटल ए और स्मॉल कैपिटल स्मॉल ए दोनों में डिफरेंस है। अगर यहीं पर मैं अगर ये बोल दी कि ये आईआईटी ऐसे लिख दूं स्मॉल, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता। अब ये वाला वैल्यू कभी ना आता, ठीक है, क्योंकि आई अब A97 है तो ऑब्वियसली इसका प्लस करो, आई कहाँ पे होगा, ठीक है, उतनी वैल्यू का वो क्या करेगा, बाइनरी करेगा, फिर आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आई थिंक सर इंस्टॉलेशन हो गई है तो बता दीजिए। डॉक्टर शायद अगर हो चुकी है हमारी इंस्टॉलेशन एनाकोंडा, तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Yes sir, am I audible sir? Shai sir, Shai Julfi sir. Yes students, आप लोगों का एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया, सॉरी डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन विल टेल यू। हो गया सभी का? सर प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे जुल्फी सर। क्योंकि एनाकोंडा इंस्टॉल करते समय बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप हो सकते हैं आपके लैपटॉप में स्पेस प्रॉब्लम आए, तो उसको कैसे रिमूव करना है विल टेल यू। ओके, सो सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन। शाय सर, Shai sir, I am audible? ओके स्टूडेंट, सर फोन भी पिक नहीं कर पा रहे। आप मुझे कोई एक स्टूडेंट बताएगा स्टेप्स कहाँ तक पहुंचे हैं आप? I'm trying to share my screen and could you guide me as a आई विल ट्राई कि अगर
Okay, 1 minute. सभी का इंस्टॉलेशन हो गया? यहाँ तक सभी का हो गया ना? इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट होगा सबका। ओके, इंस्टॉलेशन यार मुझे दोबारा करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। सर यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay, we'll tell you, don't worry. Some options are coming. Add Anaconda 3 to my path. Okay, yes, sir. Sir, wait. Student, please click on the second option, all users. Okay. हाँ, यहाँ पे देखिए, अब ये प्रॉब्लम आ रही है सर को कि यहाँ पर पाथ की प्रॉब्लम आ रही है ना? तो सर आप ब्राउज करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए, यस, और कोई और पाथ चूज करिए, क्योंकि आपकी देखिए यहाँ पे I have to delete something I think. नहीं सर, no need to delete, no need to delete. We'll tell you. Actually, my total drive is full actually. Okay, I'll delete. Don't worry. I'll send some files to. student, now this is a good example. Please, अपना phone. Sir, please mute yourself. हाँ, ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल देख पा रहे हैं। जब भी मैंने आपको एलओसी के बारे में बात करी है ना, लाइन ऑफ कोड, देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल है लाइन ऑफ कोड की। अब यहाँ पे जुपिटर ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, उसने अपना ना सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा कर दिया, जिस वजह से आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक प्रॉब्लम आएगी स्पेस की। वहां पे लिखा भी हुआ है नीचे स्पेस रिक्वायर्ड, है ना, एंड जो भी आपने स्पेस ऑलरेडी यूज की है उसको भी मेंशन किया हुआ है। अब उसने साइज इतना बड़ा कर दिया है कि हर बार ये कस्टमर्स को, उनके कस्टमर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है, अब जुपिटर ने अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करा तो इसकी मार्केट आने वाले टाइम में दूसरे टूल ले खा जाएंगे। स्पाइडर चला जाएगा ऊपर, विजुअल स्टूडियो है, पाईचार्म है, ये मार्केट खा जाएंगे अगर जुपिटर ने अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है, सो तभी मैंने बोला कि जब भी आप कोई काम करें, आप कीप इन माइंड कि आपका एलओसी लाइन ऑफ कोड कम होना चाहिए, सो दैट कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की समझ हो और इजीली इंस्टॉलेशन हो जाए। यहाँ पे मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती, आप क्या करेंगे? आप परेशान होकर जुपिटर को छोड़कर पाईचार्म चूज कर लेंगे, है ना? यस सर, डाउनलोड हो गया सर? No, ma'am. I'm just transferring the files. ओके सर, ओके। चलिए स्टूडेंट, आप देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करना, अगर कोई और स्टूडेंट है जिसको ये दिक्कत आ रही है, तभी मैं बताऊं आपको क्या करना है। उसके आगे सिर्फ एक काम करिएगा, स्लैश डालकर कुछ भी, कोई फोल्डर का नाम लिख लीजिए, ठीक है, पाइथन लिख लीजिए, सिंपल /py, उसके बाद क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नो नीड टू डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, ओके? कंप्यूटर में से सारी फाइलें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। उसी के आगे जो आपको पाथ दिखा रहा है, स्लैश डालकर कोई भी 2 वर्ड का नाम लिख लीजिए, py लिख लीजिए, पाइथन का शॉर्ट नेम py, कुछ भी लिख लो, SK लिख लो, MD लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब जैसे देखेंगे वहां पे आपने ये लिखा, आपका जो ओके है वो डिसेबल था, वो इनेबल्ड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, बिना कंप्यूटर में से कोई आइटम डिलीट किए, ये दूसरी एक टेक्निक है। यस स्टूडेंट,
चैट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट, हो गया ना? गुड। चलिए अब एनाकोंडा में ओपन कर रही हूँ, तो कैसे करेंगे? मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगी जुपिटर, तो देखेंगे जैसे एनाकोंडा आपका इंस्टॉल हो गया उसमें बहुत सारी प्लीज स्क्रीन योर शेयर योर स्क्रीन आल्सो। सॉरी ओके, जुपिटर नोटबुक सिंपल टाइप करना है जुपिटर नोटबुक, और आपका जुपिटर नोटबुक अब खुलना स्टार्ट हो गया, खुल गया। मैं क्या करूंगी, क्लिक को करना है तो भी, नहीं करना तो अपने आप उसने ये फाइल खोल दी। देखिए ऐसा आपका जुपिटर खुलेगा। एनाकोंडा जैसे खोलेंगे, एनाकोंडा में आप देख सकते हैं जब भी जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, तो मैं एनाकोंडा यहाँ टाइप कर रहे हैं तो डिसेबल दिखा रहे हैं। चलिए मैम, देयर इज अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, प्लीज चेक। यस सर। Ma'am, could you please tell us which option to choose from these, or add Anaconda 3 to my path environment and clear the package cache upon completion? Add Anaconda 3 to my path. No need to highlight this option. इसे रहने दीजिए, डिसेबल है। अगर आप करेंगे वहां पे अपने आप एक ऑप्शन आएगा नॉट रिकमेंडेड। यस, वहां पर माई आ रहा है ना? यस, जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे एड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ एनवायरनमेंट, आपको एक रेड कलर की वार्निंग दिखाई देगी, नॉट रिकमेंडेड। ओके, वो नहीं करना, छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट, ओके डन। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे टाइप करिए एनाकोंडा, और आपको मैम मेरे में एक प्रॉब्लम आ रही है। जी बताइए। शैल आई शेयर द स्क्रीन मैम? यस सर, यू कैन शेयर। इसमें अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है चूज यूजर जीबी इज नॉट एम्प्टी। सर आपकी सी ऑलरेडी फुल है ना? हाँ, नहीं हमने स्पेस अवेलेबल अब करा दिया है। सर आप इसके सर अपना फोन म्यूट करिए, मुझे ना आवाज। हाँ जी, तो यहाँ पर स्लैश के आगे कुछ नाम लिखिए, कुछ PY कुछ भी लिख दीजिए। हाँ, अब करिए, नेक्स्ट करिए। हाँ हो गया, चलिए नो नीड टू इंस्टॉल। ओके डन। ओके, अब आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ एनाकोंडा टाइप करेंगे तो एनाकोंडा में बहुत सारी आपको लाइब्रेरीज दिख जाएंगी, बहुत सारे टूल्स दिखेंगे। वहां पे जुपिटर नोटबुक दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे, बस लॉन्च कर दो। मैम अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम। जी ओके। स्टूडेंट, जुपिटर नोटबुक आप देखेंगे, अगर एक बार ओपन कर लिया तो आपको एकदम से रिसेंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एनाकोंडा टाइप करिए, यहाँ पर टाइप करिए, आपकी बहुत बड़ी स्क्रीन खुलेगी। वहां पे स्पाइडर एंड जुपिटर लैब्स बहुत कुछ लिखा होगा। जुपिटर लैब के ऊपर क्लिक नहीं करना, जुपिटर नोटबुक के ऊपर क्लिक करिएगा, ठीक है? लॉन्च कर दीजिए, वहां पे लिखा है नीचे लॉन्च कर दीजिए इसे। लॉन्च हो गया, बस ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसी में जैसे मेरे दिखाई दे रहा है ऐसे ही दिखाई देगा, जुपिटर नोटबुक लिखा। ये वाली स्क्रीन खुल गई तभी मैं आगे जाऊंगी, सबकी खुलनी चाहिए ये वाली स्क्रीन, नहीं तो पूछिए प्लीज। यस, यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स प्लीज। यस स्टूडेंट, हो गया सबका डन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओपन हो गई, ओके। एंड ये जुपिटर खुल रहा है, जुपिटर इस तरह से खुल रहा है ना आपका? सबका खुल गया?
It is installing right now. चलिए आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो कल वाले सेशन में आप पूछ लेना अगर आपका इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए। जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ है प्लीज उसके ऊपर ध्यान हटा के इस पे स्क्रीन पे आ जाइए। तो जुपिटर ऐसे लिखा आ रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यू पे जाना है, स्टेप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, भूल जाओगे बाद में। न्यू पे गए, नोटबुक, इसका भी कंसोल है, इस पे नहीं जाना, टर्मिनल पे काम नहीं करना, नोटबुक पे काम करेंगे। नोटबुक पे क्लिक किया, ये आपको दिख रहा है फ्रेमवर्क आपको ये पूरा, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंपल मैंने लिखा था 2+2, ये एग्जीक्यूशन बटन है, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है Shift+Enter। किसी का भी अगर शॉर्टकट जानना हो ना, हल्का माउस कर्सर उसके ऊपर लेके जाओ, अपने आप आपको याद करने की जरूरत नहीं है। Shift+Enter, देखिए ये लिखा आ रहा है साथ में नीचे, Shift+Enter, ये शॉर्टकट है। चले, अभी हम लोग सिर्फ पाइथन के बेसिक्स आज पढ़ेंगे, और मुझे इसी को पूरा एग्जीक्यूट करना है आज 5 बजे तक। जी, सबसे पहले इंडेंटेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडेंटेशन, इसके बेसिक्स और भी हैं, फाइल हैंडलिंग एंड इनपुट आउटपुट, वो मैंने मेंशन नहीं करे क्योंकि मैं कोडिंग, हम लोग कोई वेबसाइट बनाना नहीं सीख रहे, हम कोई गेम बनाना नहीं सीख रहे, हम लोगों को डेटा एनालिसिस करना है। उसके लिए जितने मैंने मेंशन किए इतने ही करिएगा, इससे फालतू कुछ नहीं करना। जितना मैं बोलूँ उतना ही पढ़ना है, फालतू भी नहीं पढ़ना। फालतू पढ़ोगे तो भी आपका ब्रेन हाईजैक हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जितना मेंशन किया बहुत है, सफिशिएंट है डेटा एनालिसिस के लिए। नंबर 1 इंडेंटेशन, नंबर 2 कमेंट्स, नंबर 3 वेरिएबल्स, बेसिक डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो एंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, 1 बाय 1 इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, क्या होते हैं ये, राइट। तो शैल स्टार्ट। ओके, अब कोड होने वाला है। जिसका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है वो भी टेंशन फ्री हो, और जिनका है वो खुश हो रहे होंगे कि अब हमारा पार्ट आ गया है। तो चलिए, सबसे पहले बात होती है इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन, तो सबसे पहले जब मैंने इंडेंटेशन लिखा तो एक तो चीज है कि आप जब भी कोई टाइटल वगैरह देना हो ना, तो ये एरो दिख रहा है, इसमें जाइए मार्क डाउन। मार्क डाउन जो है ना, ये टाइटल क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे मार्क डाउन किया, मैंने कुछ लिखा, रन कर देना, देखिए आ गया ना, टाइटल बन गया। दोबारा देख लीजिए, कोड में गए, मार्क डाउन। अब मार्क डाउन का मीन सिंपल है, सिर्फ वो टाइटल के लिए होता है, ठीक है। अब कोड विंडो हट गई, मतलब वो इंटरप्रेटर नहीं करेगा, कोई भी एरर नहीं देगा वो, नहीं तो ऐसे एरर देता वो। तो फर्स्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेना। देखो, इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट करा बट एरर नहीं दी, क्यों, मार्क डाउन में था, ठीक है। अब कोड आ गया लिखा, अब कोड विंडो है, इसमें कोई गलती करोगे इंटरप्रेटर एरर देगा। सो इंडेंटेशन क्या होती है, सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहीं पर, मार्क डाउन कर लूं क्योंकि मुझे डेफिनेशन लिखनी है। सो लिख लीजिए, पाइथन uses indentation to define block of code. ठीक है। दूसरा, इंडेंटेशन मीन्स सम स्पेसिस, ठीक है, सिर्फ आपको एक स्पेस देना है और कुछ नहीं है।
तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इंडेंट इट रिप्लेस, आप सी एंड सी प्लस प्लस आपने पढ़ी होगी, अगर आपने देखा होगा वहां पे जब कोड करते हैं ना हम लोग तो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो इंडेंटेशन ने ना ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। रिप्लेस द यूज ऑफ ब्रैकेट, जो ब्रेसेस हम बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, सीन इन अदर लैंग्वेज। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ लैंग्वेज की, एग्जीक्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब इंडेंटेशन का कोड लिखने लगी हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ 5 ग्रेटर देन 2, सॉरी ये सिंटेक्स है, इफ के आगे ना ये कॉलन लगता है, ये याद रखना, जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट करेंगे तब आपको ये याद हो जाएगा। इफ के आगे ये लगेगा कॉलन। एंटर, जैसे एंटर करा आपने देखा कर्सर अपने आप नीचे गया, मैंने नहीं लेके आई, मैंने एंटर ही करा। वैसे कायदे से एंटर करो तो कर्सर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कर्सर को जब एंटर किया वो यहाँ भी आ गया। क्यों आया? क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन फॉलो करती है सीरियसली, ठीक है, सीरियसली इंडेंटेशन को फॉलो करती है, अदरवाइज वो एरर देगी। मैं भी एरर लेके आती हूँ आपके लिए। अब ये होती क्या है इंडेंटेशन, देखिए ये एक टैब की स्पेस होती है, टैब समझते हैं, TAB, कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है टैब, ये वन टैब स्पेस होती है, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने किया उसने इंडेंटेशन बना दी और प्रिंट कर दो ट्रू, यस 5 ग्रेटर देन 2 है। एग्जीक्यूट करें इसे। जैसे मैंने, आप ये अभी परेशान मत होइएगा कि ये हो क्या रहा है, ये मैम ने क्यों डबल कोट लगाया, क्या, ये सब हम समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए आ गया आउटपुट ट्रू, ठीक है जी। तो ये इंडेंटेशन की वजह से। चलिए अब इसी कोड को ना मैं गलत कर रही हूँ, मैं इंडेंटेशन फॉलो नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, जानबूझ के ले गई इधर। अब देखिए रन करूं, आ गई एरर। क्या बोला उसने, expected an indent block after if statement on line 1। on line 1 बोल रहा है वो, क्यों बोल रहा है? क्योंकि इंटरप्रेटर यूज कर रहा है पाइथन। कंपाइलर यूज करता है ना, ये कभी नहीं बताता, वो बोलता ढूंढते रहो खुद कहाँ पे एरर है, और टाइम वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या किया उसने, मजे की बात ये है कि एक एक चीज बता रहा है, सेल नंबर तक बता रहा है। तो ठीक है, चलिए अपनी गलती को सुधारते हैं। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे था, मैंने सिर्फ एक बार टैब को प्रेस किया, अपने आप वो पोजीशन पे ले गया। तो इंडेंटेशन कर लिया सभी को, इंडेंटेशन फॉलो करनी। नेक्स्ट कमेंट, पीपीटी में पढ़ा था कमेंट। चलिए कमेंट क्या होता है। सी, अगर मैं कोई भी चीज लिखूं, मान लो मैं इसी को लिख देती हूँ, इफ 5 ग्रेटर देन 2। अब ये कोड है, मान लीजिए इसको मैं समझाने के लिए करना था मुझे, और मैंने क्या किया, इसमें गलती कर दी। अब इसे क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, एरर आ गई। अब मैं तो इंटरप्रेटर को ये समझाना चाह रही हूँ कि भाई मैं कोड नहीं कर रही थी, ये तो मैं सिर्फ उसको समझा रही थी। वो कह रहा है कि समझा रहे थे ना, तो फिर इसके आगे ना हैश डाल दो, सॉरी स्टॉप करना है पहले, इसके आगे हैश डाल दो। ये हैश क्या है, हैश है कमेंट, ठीक है, इसका मतलब है कमेंट। इसके आगे भी हैश डाल दूं तो इसके भी एरर दे देगा, ठीक है जी। तो कमेंट का मतलब होता है किसी चीज का टाइटल देना है, हेडिंग देनी है। आपको जब मैं आगे प्रोग्राम करवाऊंगी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी मुझे कि ये क्यों कर रही हूँ। तो वो जो क्यों कर रही हूँ लिखूंगी ना, वो मैं हैश टैग लगाकर ही करूंगी, नहीं तो जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करूंगी वो एरर देनी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब इग्नोर, ये इसे हैश से होता क्या है, इंटरप्रेटर को ना हम बाईपास करते हैं, मतलब इंटरप्रेटर के पास कोड जाने ही नहीं देते, क्योंकि उसके पास जाएगा तो वो चिल्लाएगा कि गलती की है, वो एरर देगा, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग क्या करें, हैश टैग लगाएं।
अब आगे क्वेश्चन है कि ये तो हो गया सिंगल लाइन, ठीक है, कमेंट समझ आ गया आपको, कमेंट क्यों देना है टाइटल के लिए, ठीक है, तो आप लिख लीजिए आगे कमेंट के लिए। अगर सिंगल लाइन, देखिए दो चीजें बताइए मैंने यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइए। अगर कोड विंडो के अंदर टाइटल देने हैं तो हैश लगा देना, एरर ना आए, नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या थी, मार्क डाउन, ठीक है, मार्क डाउन लिखोगे उसमें कमेंट, उसमें एक आपको हैशटैग नहीं लगाने का क्योंकि वो पहले से ही कमेंट फॉर्म में है। दोनों ऑप्शन याद कर लो। अगर टाइटल देना है तो मार्क डाउन पहले ऑन कर लो, अगर आपको मार्क डाउन भूल गया लगाना, आपको कोड विंडो के अंदर कमेंट देने हैं या देने भी पड़ते हैं तो फिर हैश यूज कर लीजिए। तो सिंगल लाइन कमेंट है ना, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैशटैग सिंगल। अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो क्या करना, मतलब पहला बहुत बड़ा मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट है तो क्या करेंगे, 1 2 3 सिंगल को, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, डबल कोड भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 तब भी चलो, ठीक है जी। मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, मैं इसको भी, इस लाइन को भी कमेंट कर दूं, नहीं तो एरर दे देगा ये, इसको भी एग्जीक्यूट कर डालेगा ये, ठीक है जी। कमेंट क्लियर, सबको क्लियर। आगे वेरिएबल्स, अभी 15 मिनट्स है आई थिंक, तो मेरे को लग रहा है कि शायद आज 3 ही कवर हो पाएंगे, ये फिर कल करेंगे, आज थोड़ी इंस्टॉलेशन ने टाइम वेस्ट किया है हमारा, तो प्लीज कल टाइम पे और जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो वेरिएबल्स पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर वैल्यूज, यूज्ड फॉर डेटा, वेरिएबल्स आर used to store data, ओके। अब आप कैसे समझोगे इसे, जैसे मैंने कहा 2 जो 23 लिख दिया, अब हुआ क्या, ये तो खाली लिख दिया ऐसे। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको ऐसे लिखूं a इक्वल टू 23, तो जो 23 है ये तो वैल्यू है ना, ये तो डेटा है ना, ये a क्या है, ये वेरिएबल, ठीक है जी। अब ये वेरिएबल मैं क्यों लिखूं, पाइथन वेरी स्मार्ट लैंग्वेज, यस, आप वेरिएबल को इग्नोर कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है मेरी वैल्यूज बड़ी होती है, या मुझे कैलकुलेशन ऐसे करनी है, a23 b इक्वल टू 45, इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है ना, तो ये ज्यादा आसान है। तो या फिर अगर आप ये कहो कि नहीं मैम ऐसा करते हैं ना, हटा दो इनको, वेरिएबल्स को हटा ही देते हैं, तो फिर क्या करोगे, 23 प्लस 45 करोगे, गलत तो तब भी नहीं है, पाइथन में गलत नहीं है, सी लैंग्वेज में करोगे, सी प्लस प्लस में करोगे तो गलत है, क्योंकि वो नहीं सपोर्ट करेगा, पाइथन कर लेता है, ठीक है जी। तो लेकिन अभी मैं आपको वेरिएबल की बात समझा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, a इक्वल टू 23, आप समझिएगा। पहली बात, ये कोई भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखूं IIT, गलत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूं माइंड शेयर, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सिंपल एक नाम होता है, एक नेम होता है, ठीक है जी। सेम एज यू कैन से दैट कि आपने पानी को कहीं स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करेंगे, बर्तन में करेंगे, किसी बकेट में करेंगे, तो वो जो बकेट है, वो जो बर्तन है, उस समय वो वेरिएबल का काम करेगा, और वाटर वैल्यू का काम करेगा। गॉट इट, समझ गए वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये बेसिक से पाइथन का बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा है, डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे से लोगों को आता है करना, लेकिन उनको वेरिएबल्स सी एंड स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके साथ मैच नहीं करने का इसको, ये प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स के वेरिएबल अलग होते हैं, ओके। तो ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरी वैल्यू है। तो जब भी मुझे कैलकुलेशंस करनी है
जब भी मुझे कैलकुलेशन करनी है, मानो 67 को 23 में प्लस करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, वेरिएबल्स को प्लस करूंगी, तो वैल्यू तो अपने आप प्लस होगी। अब याद रखिएगा 23 ऐसे इसमें आता है, मतलब 23 माइंड शेयर में स्टोर हो रहा है, माइंड शेयर 23 में स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। वाटर बकेट में स्टोर हो रहा है, बकेट वाटर में स्टोर नहीं होती, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा वैल्यू ऐसे जाती है, लेफ्ट एंड राइट है, राइट टू लेफ्ट, इंस्टॉलेशन ऐसे होती है। मतलब 23 गया माइंड शेयर में, 67 गया आईआईटी में, और कर दो दोनों को प्लस, ठीक है। तो आपके 23 और 60 आईआईटी क्या होगा, अपने आप प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। वेरिएबल्स के रूल होते हैं, याद रखिए। पाइथन में मैंने फिर बोला है कि पाइथन में अगर आप वेरिएबल स्टोर नहीं भी लिखते तो भी ये गलत नहीं है, ये बार बार बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगी यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। अब देखिए मुझे हैशटैग डालना पड़ रहा है क्योंकि मैं कोड विंडो के अंदर काम कर रही हूँ, यही अगर मैं मार्कडाउन के अंदर काम करती तो मुझे बार बार ये हैशटैग ना डालना पड़ता। सो पाइथन is dynamically typed, okay, sorry, caps lock over. Python is dynamically typed, so आप लिख सकते हैं, so do not need to declare the variable, okay। अगर आप वेरिएबल नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो भी चलेगा। Am I audible? Yes. Yes, sir. ओके, एक्चुअली सर मेरे इधर लाइट चली गई है तो मुझे लग रहा है कि 2 मिनट में शायद यूपीएस बंद ना हो जाए, तो ओके जब तक चलता है मैं चला रही हूँ, मुझे अदरवाइज सर आप इंफॉर्म कर दीजिए अगर लाइट। ओके, सो वेरिएबल के लिए अब वेरिएबल्स के टाइप होती है भाई, बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब क्या क्या टाइप होती है, नंबर 1 INT, इंटीजर लिखो चलेगा, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया INT तो भी चलता है, ठीक है। तो INT या इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, ओके एक्चुअली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा थोड़ा सा इधर लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है रूम में और मुझे अंधेरे में टाइप करना पड़ रहा है। इंटीजर्स होल नंबर, whole number means you can say that 10, 3, 6, 7 without any decimal, okay। Second, float, Julfi sir, hello, hello, yes sir, yes sir, yes ma'am, sir okay लाइट आ गई, मुझे लगा कि सेशन क्लोज करना पड़ेगा एक्चुअली। is there any problem ma'am? कॉल से करना पड़ रहा है। फ्लोट, फ्लोट, hello, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्लोट में you can say that 3.4, 4.6 and 7.8, ओके ये हमारी क्या होंगे, फ्लोट नंबर, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि इनको ये इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है जी।
आगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बार बार हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, आईआईटी, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, एंड माइंडशेयर, जिनकी हेल्प से आप ये सेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। ओके, आगे होते हैं बुलियन। आप सोच रहे होंगे करैक्टर, इसमें ना करैक्टर हम लोग रियली यूज करते हैं, इतना यूज में आता नहीं है। तो करैक्टर तो सिंपल करैक्टर है, एक सिंगल अल्फाबेट है, 2 करैक्टर है ना। तो बुलियंस, बुलियंस तो आपको पता ही है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, बस इतने ही डेटा टाइप है, इतने ही याद रखने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जितना आज करवाया डेटा टाइप का, इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो वेरिएबल्स के लिए, डेटा टाइप्स के लिए, सॉरी बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप लिखना था, वेरिएबल लिख दिया, सॉरी लाइट चली गई थी, बिल्कुल अंधेरे में टाइप करना पड़ रहा था मुझे। बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, राइट। तो वेरिएबल्स क्लियर, डेटा टाइप क्लियर, वेरिएबल, बेसिक डेटा टाइप, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे अभी, एंड उसके बाद ये वाला मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा और इसको प्रैक्टिकल हम करेंगे सब। तो नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं सबको पता ही होगा, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस, यस मैम। सेम ही होते हैं जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में है। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कल प्रैक्टिकल कल करेंगे इसका, ठीक है। अभी मैं टाइप कर रही हूँ, क्या मैं बोल देती हूँ, मुझे टाइम लगेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स नोट कर लीजिए जल्दी से। कंपैरिजन, सॉरी अंधेरे में टाइप करने का यही नुकसान है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ तो आप नोट डाउन कर पाएंगे? यस मैम। ओके ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 ऑपरेटर ही सीखने हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। बहुत ज्यादा बिटवाइज में नहीं जाने का, कोई इसका यूज नहीं है हमारे एनालिसिस में, जितना यूज है उतना ही पढ़ना है। फिर बार बार कहूंगी फालतू नहीं पढ़ना, जितनी जरूरत है जॉब के लिए उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी ऑपरेटर्स के लिए प्रैक्टिकल में कल करवाऊंगी आपको, ठीक है। और कंट्रोल फ्लो कैसे होगा, और कल ही डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो मैंने अभी आपको बेसिक करवाया है, 2 सेशन को मर्ज करके मुझे आज थोड़ा स्पीड में कंप्लीट करना था। और कंट्रोल फ्लो फंक्शन करेंगे कल हमारा रहेगा आते ही, ऑपरेटर्स इसका प्रैक्टिकल, कंट्रोल फ्लो, डेटा स्ट्रक्चर, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लिस्ट, टप्पल एंड सेट्स, डिक्शनरी, ठीक है। इसको मुझे बहुत जल्दी बाइंड अप करना पड़ेगा, और कल 1 घंटे में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट 4 to 5 रहेगा वो हमारा डेटा एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा विद पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है। और पाइथन लाइब्रेरीज मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको, हो सके तो पढ़ के आना। पांडास एंड मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, ये बहुत सारी लाइब्रेरी है। कल हम पांडास के साथ काम करना सीखेंगे, मींस मैं आपको कल ये सिखाने वाली हूँ, ये देख लीजिए कल का क्या रहेगा हमारा सेशन। कल मेरा काम ये रहेगा, डेटा कलेक्शन। तो डेटा मैं गैदर करूंगी, डेटा इंपोर्ट करेंगे। ये डेटा इंपोर्टिंग जो होगी वो विद द हेल्प ऑफ पांडा लाइब्रेरीज करूंगी, ठीक है। Yes, कल ma'am. ये फर्स्ट वाला स्टेप करेंगे कल, एंड सेकंड वाला भी कल कर लेंगे, और नेक्स्ट के जो 2 डेज रहेंगे उसमें ये वाला काम करेंगे। एंड डेटा एनालिसिस का एक प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा, ओके। एंड विल टेल यू कि आपको कहां कहां से ऑनलाइन इंटर्नशिप करनी है, आपको उनके सर्टिफिकेट ले लेने हैं, और सारे ढेरों सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेना। जैसे माइंडशेयर ने आपको एक हेल्प दे रहा है, इसी तरह आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कहां से डेटा सेट मिलेगा, एंड कैसे वो सर्टिफिकेट अर्न करने हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ज्यादा उसका रहता नहीं है, वो सारा आपको बताऊंगी जो मैंने अपने बाकी स्टूडेंट्स को बताया था,
तो आप अपना सीवी अच्छे से बना सकते हैं। एंड लास्ट डे आपको ये बताएंगे कि डेटा एनालिस्ट का सीवी कैसा होता है। वो हर तरह का सीवी जो होता है वो नहीं चलेगा। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट का सीवी भी अलग ही होता है, अलग तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ओके ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।